میرے بن تو ادھورا رہے گا صدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے دوستو، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کی ہے تو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اچھا، آج کے دور کا نوجوان نسل کا بچہ کتنا سمجھدار ہو گیا ہے، اسے پتا ہے چلانے سے ہو کرنے سے ہماری طرف ذہن جائے گا، کیمرے آئیں گے تو ہمیں دیکھا جائے گا۔ یہ نئی نسل کے جو بچے ہیں وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ سلام ہے ان کو۔ وہ اسی طرح کا ایک نیا سا بچہ جو ہے وہ شاید میرے پرتاپ گڑھ کا ہی رہا ہوگا۔ ایسے بدماش بچے تو میرے ہاں ہی پیدا ہوا کرتے ہیں صاحب الحمدللہ۔ وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اوپر کی برتھ پر، تو نیچے والی سیٹ پر تو خوبصورت سی لڑکیاں آ کر کے بیٹھی، تو بندے کا سارا ذہن ادھر ہی چلا گیا۔ پہلی لڑکی نے دوسری لڑکی سے آپس میں بات چیت شروع کری، شادی کب کر رہی ہو؟ تو پہلی نے کہا کہ تلاش جاری ہے، کیسا شوہر چاہیے؟ تو اس نے کہا کروڑ پتی مل جائے تو کر لوں گی۔ تو پہلی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ اگر کروڑ پتی نہیں ملا تو کیا کرو گی؟ نئے زمانے کی لڑکی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، 50 لاکھ کے 2 کر لوں گی۔ تو اس کو لگا کہ اور سوال پوچھنا چاہیے۔ اس نے کہا اگر 50 لاکھ کے 2 نہ ملے تو کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، فلیکسیبلٹی دیکھیے آپ۔ لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں، میں 25 کے 4 کر لوں گی۔ 4 تک تو معاملہ ٹھیک ہی ہے، فی الحال چل ہی جاتا ہے۔ تو جب پہلی لڑکی نے کہا اگر 4 نہ ملے 25 کے 2 تو کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، 10 لاکھ کے 10 کر لوں گی۔ بندہ پرتاپ گڑھ کا تھا، اوپر بیٹھا ہوا تھا، برداشت نہیں ہوا، سیدھے نیچے کود کے آیا، بولا بہن جی جب یہ ریٹ 1000 تک آ جائے تو مجھے بھی خبر کر دینا، میں بھی لائن میں ہوں۔ یہ ہے نئی نسل۔ آپ اس نئی نسل کو الحمدللہ اس کی سمجھداری کو تو سلام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ نئی نسل جو ہے آپ اس سے پار نہیں پا سکتے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، اسی طرح محفوظ رکھے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ادھر سے بغل سے واٹس اپ اور فیس بک کے زمانے میں بھی لگاتار خط آ رہے ہیں۔ سلام بھائی صاحب کو۔ میں پڑھتا ہوں، میرے بن تو ادھورا رہے گا صدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے۔ پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، کہ ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی۔ میرا دوست اسیر، اس کی خاص گزارش تھی کہ میں یہ نظم پڑھوں، کہ ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی، یہ درنگی سیاست نہیں چاہتی، ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی، یہ درنگی سیاست نہیں چاہتی، ہندو مسلم یہاں پر رہیں پیار سے، بس یہی تو حکومت نہیں چاہتی، کہ ہندو مسلم لڑے اور لڑتے رہے، ہندو مسلم لڑے اور لڑتے رہے، اس سیاست کا اپنا یہی ڈھنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ آخری بند پڑھتا ہوں صاحب، کہ گوبر کو کوہ نور بتانے میں رہ گئے، گوبر کو کوہ نور بتانے میں رہ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تالیوں سے سواگت کیا جائے، تالیوں سے، کیا بات ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ کالی شال اڑائی ہے
ताकि नजर न लग सके, ऐसा उन्होंने बताया है। जियो इमरान जी। अब सामने जब प्रतापगढ़ के इतने सारे लोग और हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों के इतने मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, माएं बहनी बैठी हैं, हाँ नहीं खाली प्रतापगढ़ नहीं, हमको भी पता है ना भैया, हम तो कह ही रहे ना कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के लोग बैठे। और मेरे लिए तो मैं अब सिर्फ प्रतापगढ़ की अमानत तो रह नहीं गया, मैं तो आप सब की अमानत हूं, पूरे हिंदुस्तान की अमानत हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई। मैंने कभी खुद को सिर्फ प्रतापगढ़ तक महदूद नहीं रखा। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मेरा एक जिला जिसे कुछ गुंडों के नाम से जाना पहचाना जाता था, मेरा एक ऐसा जिला जिन्हें राजे रजवाड़ों के नाम से पहचाना जाता था, आज खुशी होती है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से कहते हैं कि वो प्रतापगढ़ जो इमरान प्रतापगढ़ी वाला प्रतापगढ़ है। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। एक ऐसा जिला जहां हजरत मौलाना अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी बड़ी शख्सियत पैदा हुई, लेकिन गुंडों की पहचान के पीछे अच्छे लोगों की पहचान छुपी हुई थी। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद बेहश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। हज़रत लिया यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला का जिक्र। उनका जिक्र कुरान मजीद में आया है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह हुए और कहत पड़ा और सब भाई मिलकर अनाज खरीदने उनके पास गए और हज़रत यूसुफ ने आपको पहुंचा दिया। उस वक्त अपना कुर्ता अपने वालिद याकूब की आंखों पर डालने के लिए दिया और ये भी कहा कि सबको यहाँ ले आओ। चुनांच हज़रत याकूब की बीनाई फिर दुरुस्त हो गई और अपने वतन से चलकर मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपने खाला को ताज़ीम के वास्ते बादशाही तख्त पर बिठला दिया और ये दोनों साहब और सब भाई उस वक्त हज़रत यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े। उस ज़माने में सजदा सलाम की जगह दुरुस्त था, अब दुरुस्त नहीं रहा। अल्लाह ताला ने उनकी खाला को माफ़ फरमा दिया है। उनकी माँ का इंतकाल हो गया था और याकूब ने उनसे निकाह कर लिया था। बाज़ों ने कहा है कि जिनका ये किस्सा है ये माँ थी, हज़रत राहिल उनका नाम था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बचपन की ख्वाब की ये ताबीर है। उन्होंने ख्वाब देखा था कि चांद, सूरज और 11 सितारे मुझको सजदा कर रहे हैं। फ़ायदा देखो कैसी बुज़ुर्ग होंगी जिनकी ताज़ीम नबी ने की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र। उनका नाम यूखांद है। जिस ज़माना में फ़िरौन को नजूमियों ने डराया था कि बनी इसराइल की कौम में एक लड़का ऐसा पैदा होगा जो तेरी बादशाही को गारत करेगा, और फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जो लड़का बनी इसराइल में पैदा हुआ उसको कत्ल कर डालो। चुनांच हज़ारों लड़के कत्ल हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस वक्त खुदा ताला ने उन बीवी के दिल में ये बात डाली जिसको इल्हाम कहते हैं। तुम बेफिक्र उनको दूध पिलाती रहो और जब उसका अंदेशा हो कि किसी को खबर हो जाएगी तो उस वक्त उनको संदूक के अंदर बंद करके दरिया में डाल दीजिए, फिर उनको जिस तरह हमको मंजूर होगा तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। चुनांचे उन्होंने बेधड़क ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने अपने सब वादे पूरे कर दिए। फ़ायदा बीवियों देखो उनको खुदा ताला पर कैसा भरोसा और इत्मीनान था और उस भरोसा की बरकतें भी कैसी ज़ाहिर हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का जिक्र। उनका नाम बाज़ों ने कहा है कि मरियम है, बाज़ों ने कहा है कुलसूम है। जब हज़रत मूसा को उनकी वालिदा ने उनको दरिया में डाल दिया तो बेटी से कहा कि ज़रा तुम खोज लगाओ कि अंजाम क्या होता है। गर्ज वो संदूक नहर में होकर फ़िरौन के महल में पहुंचा और निकाला गया तो उसके अंदर एक खूबसूरत बच्चा मिला और फ़िरौन ने कत्ल करना चाहा, मगर फ़िरौन की बीवी आसिया ने के नेक बख्त और खुदा तरस थी कहकर सुनकर जान बचाई और दोनों मियाँ बीवी ने अपना बेटा बनाकर पालना चाहा। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम किसी अना का दूध ही मुंह में ना लेते। सब हैरान थे कि क्या तदबीर करें। उस वक्त ये बीवी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन इसी खोज में वहाँ पहुँच गई थी। कहने लगी कि मैं एक दूध पिलाने वाली बतलाऊँ जो बहुत खैर खा और शफीक है और दूध भी बहुत सुथरा है। आखिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का पता बतला दिया और वो बुलाई गई और मूसा अलैहिस्सलाम उनके सुपुर्द कर दिए गए और अल्लाह ताला का जो वादा था कि हम उनको तुम्हारे पास पहुंचा देंगे वो इस तरह पूरा हुआ। फ़ायदा देखो अक़ल भी क्या चीज़ है।
किस तरह ये पता भी लगा लिया और कैसी जान जोखों में अपनी माँ की खैर खाही और ताबेदारी बजा लाई और दुश्मनों को भी खबर ना हुई। बीवी और माँ बाप की ताबेदारी और अक्ल तमीज़ बड़ी नेमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र, उनका नाम सफ़वारा है और ये हज़रत शुएब की बड़ी बेटी हैं। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से मिस्र शहर में एक काफिर बेइरादा मारा गया और फ़िरौन को खबर हुई, उसने अपने सरदारों से सलाह की कि मूसा को कत्ल कर देना चाहिए। मूसा ये खबर पाकर पोशीदा तौर पर मुदय्यन शहर की तरफ चल दिए। जब बस्ती की हद में पहुँचे तो देखा कि बहुत से चरवाहे कुएं से खींच कर अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पर जाने से हटा रही हैं। उन दोनों लड़कियों में एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी थी और एक साली। आपने उनसे उसकी वजह पूछी। उन्होंने कहा कि हमारे घर कोई मर्द काम करने वाला नहीं है, इसलिए हमको खुद काम करना पड़ता है, लेकिन चूँकि हम औरतें हैं इस वास्ते मर्दों के चले जाने के मुंतज़िर रहते हैं। सबके चले जाने के बाद हम अपनी बकरियों को पानी पिला लेते हैं। आपको उनके हाल पर रहम आया और पानी खुद निकाल कर बकरियों को पिला दिया। इन दोनों ने जाकर अपने वालिद बुजुर्गार से ये किस्सा बयान किया। उन्होंने बड़ी बेटी को भेजा कि उन बुजुर्ग को बुला लाओ। वो शर्माती हुई आई और मूसा अलैहिस्सलाम को उनका पैगाम पहुंचा दिया। आप उनके हमरा हो लिए और हज़रत शुएब से मिले। उन्होंने उनकी हर तरह से तसल्ली की और फरमाया कि मैं चाहता हूं कि उनमें से एक लड़की तुमसे ब्याह दूं, मगर शर्त यह है कि 8 या 10 बरस मेरी बकरियां चराओ। आपने मंजूर किया और बड़ी बेटी से आपका निकाह हो गया। इफ़ाए अहद के बाद आप उनको लेकर वतन चले थे कि रास्ता में सर्दी की वजह से आग की ज़रूरत हुई। तूर पहाड़ की आग नज़र आई, वहाँ पहुँचे तो खुदा का नूर था। वहीं आपको पैगंबरी मिल गई। फ़ायदा देखो अपने घर का काम कैसी मेहनत से करती थी और गैर मर्द से लाचारी को बोली तो कैसी शर्माती हुई। बीवी तुम भी घर के कामों में आराम तलबी और सुस्ती मत किया करो और शर्म हया हर वक्त लाजिम समझो। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।